Okay, yes, we are here. Hello, everyone. Let me welcome you on this digital platform. This session is organized by Futurista. Futurista is a wide range of learning platform where all stakeholders can come together and interact for the betterment of next generation. Futurista provides a platform for parents, students, teachers, educational leaders, and especially society to communicate with one another and work to educate young generation. It not only focuses on only academical subjects, but also aims to develop life skills to help youngsters to be ready to face this competitive world. Especially this session is about how to deal with competitive exams, and we are also going to have such session in series. Specifically इस सीरीज को नाम दिया है फ्यूचर स्टार कैरियर। फ्यूचर स्टार कैरियर में हर सैटरडे को इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके साथ मुलाकात होती रहेगी और ऐसे ही सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज होते रहेंगे फ्रॉम फ्यूचर स्टार। सो नाउ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट मी वेलकम our honorable speaker, Sri Dankesh Oza. Sri Dankesh Oza has voluntarily retired from the post of Joint Secretary to the state government. He was a senior faculty at SPIPA and other such institutes, and now he spends his time in educational trainings and social activities. उन्होंने गवर्नमेंट के कई सारे डिविजन्स में बहुत सारा वर्क किया हुआ है और कहीं ना कहीं उन्होंने विजिलेंस, साहित्य एकेडमी, बहुत सारे वेरियस फील्ड्स में वर्क किया हुआ है। मिनिस्टर्स, इवन सीएम के साथ भी लंकेश ने काम किया हुआ है एंड ही इज आल्सो एसोसिएटेड विद जीपीएससी एंड यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर्स। सो अगेन लंकेश जी, जस्ट अब आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिस जो हमने टाइटल दिया हुआ है, ये सिविल सर्विसेज क्या है, व्हाट इट मींस बाय। तो इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे सर। Before I answer your question, for the aspirants and competitors who have joined this platform, I would like to appreciate the efforts made by Futurista because it will be helping the young generation and those who are preparing for government jobs at various levels and even for GPSC and UPSC exams and even for bank exams and others. So you are asking me about what is meant by civil services. Civil services are different than military services, different than defense services. So the word had come at that point of time as civil services because when Britishers were ruling India, there were not many people who were Indians in the administrations. And the main problem was that of only military services. So when they started public administration and ruling the people with rules and notifications and acts and other things, statutes and other things, then they required civil servants. So those were called civil servants and the services were called civil services. So it is other than defense services, other than military services. This is the basic concept. And civil services means public administrative jobs, public administration. And those who are associated with public administrations are called civil servants. ओके सर, तो फिर ये जो एग्जाम्स है सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, हु कैन गिव दिस एग्जाम्स, कौन दे सकता है ये सिविल सर्विस की एग्जाम्स को? यस, ये बात आपने बहुत अच्छी तरह वो करनी चाहिए, सबको समझनी चाहिए कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो जब शुरू हुई, as I told you earlier, in the British period, at that time the civil services were the exams were not held even in India. If you remember, those who appeared for such exams, they have to travel to London to appear in the exam. Oh. And at that time, it was called ICS. ICS. So the civil services, Indian civil services was the name. And people used to travel to appear in the exam to London. So at that point of time, even before that, even Indians were not allowed to appear for the exam.
Later on, it was opened up for the Indians. Earlier, only Britishers were allowed to appear in that exam, and they used to serve in India as the top civil servants. Later on, it was open for Indians, and competitors used to travel to London for appearing in that exam. So now we have been liberated, we are independent nation, and we have our own constitution. And constitution gives right to opportunity to all. This is the basic fundamental thing, right to opportunity. Okay. That is given by the constitution. So any graduate, ये आप जो पूछ रहे हैं ना कि ये दिस एग्जाम में कौन बैठ सकता है, कौन अपियर कौन हो बैठ सकता है, सकता है? तो एनी ग्रेजुएट, द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन इज ग्रेजुएशन. सो graduate of any university established by law, passed by assembly or parliament. ये जो डिस्टेंस एजुकेशन है, हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, और जो कोई है वो उनके स्नातक, उनके ग्रेजुएट भी अपियर हो सकते हैं. हमारी जो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं उनके भी हो सकते हैं. और बेयर इन माइंड दैट फ्रॉम एनी फैकल्टी, दैट आईआईटी का ग्रेजुएट भी अपियर हो सकता है, और होम्योपैथी एंड आयुर्वेद का भी हो सकता है, मेडिकल इंजीनियरिंग का भी हो सकता है, और बीए बीकॉम का भी हो सकता है. सो फ्रॉम एनी फैकल्टी यू शुड हैव ग्रेजुएटेड. दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अपियरिंग इन सच अ एग्जाम. So the right to opportunity is available to any graduate having secured any percentage of mark, being from any faculty. He can compete for such exams that is being taken by GPSC and UPSC. When we say civil services, there are two types of exams. So that we will see later on, but all India services and provincial services. So he has the right to opportunity. वो कोई भी स्नातक ये परीक्षा दे सकता है और अपने आप को कलेक्टर एंड डीएसपी की जगह पे अपने को देख सकता है, पहुंच सकता है. और he can think of it that I can occupy the chair of a collector, I can occupy the chair of a district superintendent of police. So in democracy, this right to opportunity is given to all the graduates who have cleared their graduation exam. ओके सर, मतलब जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएट जो हो चुके हैं वो ये मतलब ऐसी कई सारी कैटेगरी है जो ऐसी एग्जाम्स दे सकती है, लेकिन जो ग्रेजुएट हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पास की हुई है, उनकी प्रिपरेशन उन्होंने की हुई है. तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो दोनों की स्टडी में कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा. तो हाउ कैन वन डिफरेंशिएट, मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हाउ कैन वन डिफरेंशिएट? नमन, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल क्या है, हमारे जो इंडियन एनवायरनमेंट है उसमें ग्रेजुएशन का सोशल स्टेटस बहुत है. हम लोग, हमारे यहाँ आईटीआई है, हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक है, हमारे यहाँ डिग्री कॉलेजेस है, फिर भी हम लोग आईटीआई में बहुत नहीं जाते, हम लोग पॉलिटेक्निक में नहीं जाते. सबको ग्रेजुएट होना है, बिकॉज ग्रेजुएशन हैज गॉट अ सोशल स्टेटस. आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, सो सबको कॉलेज जाना है, कॉलेज में स्नातक बनना है, ग्रेजुएशन प्राप्त करना है. मगर ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, द क्वेश्चन यू हैव रेज्ड, दे आर पोल्स अपार्ट. उसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम ऐसी है कि वहां लैक्स ऑफ पीपल, दे स्टडी फॉर 2-3 years, earlier 4 years, now they study for 3 years, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. हाँ, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल में थोड़ा ज्यादा भी पढ़ते हैं, थोड़े ज्यादा साल भी पढ़ते हैं. मगर ये जो पढ़ते हैं उसमें देयर इज अ सिलेबस. हाँ, ये किताब में से क्वेश्चन आएगा. This is your subject, these are the textbooks, this is the syllabus, you have to prepare and everything will be asked from these books only. ये जो किताबें आपको दी गई है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कुछ भी है, लैंग्वेजेस है, तो उसमें किताबें तय है, तो उसी में से क्वेश्चंस आएंगे. जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, देयर इज नो सिलेबस, यानी कि देयर आर नो टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब. सिलेबस यानी उनका एरियाज वो तय किया हुआ है, यानी कि हिस्ट्री है,
तो इंडियन हिस्ट्री है, किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री लिया। अब इंडियन हिस्ट्री में फ्रॉम वेदास टू कंटेम्पररी वर्ल्ड यहां तक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसमें कुछ ये मध्य युग आएगा और ये नहीं आएगा और ये एंशियंट इरा ही आएगा, ऐसा नहीं है। होल एरिया ऑफ हिस्ट्री, हाँ, होल एरिया ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में है। तो ये जो बात है वो सबको जरा डिफिकल्ट तो लगती है, क्योंकि हम लोग आदी हो चुके हैं कि किताबें पढ़ना, किताब नहीं पढ़ना तो किताब की गाइडें पढ़ना और हमारा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हासिल करना। इसमें क्या है कि देयर आर नो टेक्स्ट बुक्स, ओनली द सब्जेक्ट एरियाज आर स्पेसिफाइड and you can read from anywhere, from any how you have to prepare that. And the main thing is that you have to compete. There is no competition at the university level. कंपटीशन नहीं है, वो उनमें ग्रेजुएशन होना है। कंपटीशन कब आती है? कंपटीशन तब आती है जब ज्यादा लोग उसमें बैठते हैं और उनको थोड़े बहुत की ही जरूरत है। दे वांट ओनली 10, दे वांट 100, दे वांट 1000। तो लैक्स में से 1000 में हमको सिलेक्ट होना है। यू हैव टू कॉम्पीट एंड रीच हायर एंड हायर। सो उसमें जो करना है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम से बिल्कुल अलग है। इसलिए लोग घबरा भी जाते हैं, क्योंकि हम तो पहले से स्कूल में, जब से स्कूल में जाते हैं, जब से कॉलेज में जाते हैं, तो वी स्टडी वन बुक कि ये किताब है, ये आपको पढ़ना है, ये हमारी टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ टेक्स्ट बुक कल्चर नहीं है और पूरा सब्जेक्ट एरिया इज वाइड वाइड ओपन, और उनमें आपको बहुत लिटरेचर अवेलेबल भी है, गाइड्स भी अवेलेबल है, ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू कॉम्पीट एंड क्रैक दिस एग्जाम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ये सब्जेक्ट एरियाज है मगर टेक्स्ट बुक नहीं है। मतलब अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मतलब यहाँ पे वो जो कहते हैं ना गोखड़ियों ज्ञान कदाच काम हाँ, नहीं ये आए। काम नहीं यहाँ पे, ये काम नहीं यहाँ पे। लॉजिकल रीजनिंग्स एंड सम Yeah. मैथमेटिकल स्किल्स तो Yes. એ યુટિલાઇઝ થશે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ્સની પ્રિપરેશન્સમાં આઈ થિંક Yes. Thinking ability. થિંકિંગ એબિલિટી ક્રિટિકલ થિંકિંગ ક્રિએટિવ થિંકિંગ લોજિકલ સ્કિલ્સ એ બધું પણ આની પ્રિપરેશન્સમાં બહુ જ વપરાશે। અગત્યનું બને છે। यस 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 तो सर हमें वो थी मतलब इसकी प्रिपरेशन कब से शुरू करनी चाहिए? अगर ये कोई सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, ये स्पेसिफिक बुक ओरिएंटेड नहीं है, तो इसकी प्रिपरेशन कब से शुरू करना चाहिए? एक स्टैंडर्ड कोई आइडियल टाइम? हाँ, ये आपकी बात बहुत सही है, क्योंकि गुजरात में क्या होता है, ये मैं जब पढ़ाने जाता हूँ ना, तो इवन आईआईटी वाले आते हैं, एमबीबीएस वाले आते हैं, बहुत से फार्मेसी वाले आते हैं, इवन मैनेजमेंट वाले आते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता, मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलता, क्योंकि इफ यू हैव हायर परसेंटेज देन ओनली यू गेट एडमिशन। सो मैंने बोला कि आपने ये सीट को बिल्कुल बेकार बना दिया। ये इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग छोड़ के आप सिविल सर्वेंट बनने आ गए, तो ये क्यों किया? तो वो बोलते हैं कि सर मुझे पता ही नहीं था, till I graduated I didn't know about UPSC GPSC एग्जाम्स एंड दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और एक एग्जाम में अपियर होके उसमें सफल होके मैं कलेक्टर बन सकता हूं, वो मुझे पता ही नहीं था। तो आप जो पूछ रहे हैं कि कब से तैयारी करनी चाहिए, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द बीमारू स्टेट्स, वी यूज्ड टू टेल दोस बीमारू स्टेट, ऐसा शब्द है PIMARU, उसमें किसी को डाउनग्रेड करने की बात नहीं है, मगर सर्टन स्टेट्स आर डेवलप्ड। दुनिया में जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है और डेवलपिंग कंट्रीज है, ऐसे भारत में भी ऐसा हुआ है कि बहुत से स्टेट ज्यादा विकसित है और कम स्टेट्स अल्प विकसित भी है। तो बीमारू जो है, यानी BI यानी बिहार, MA यानी मध्य प्रदेश, A यानी आंध्र प्रदेश, R यानी राजस्थान, U यानी यूपी और उत्तराखंड वॉटेवर। तो ये जो बेल्ट है वो वहां से लोग सिविल सर्विस में बैठने का कब से सोच रहे मालूम है? व्हेन दे आर इन हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। वो 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ते बच्चे क्या बोलते हैं, मैं तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला हूं, मैं तो सिविल सर्वेंट बनने वाला हूं, मैं तो यूपीएससी में अपियर होने वाला हूं। सो दे डिसाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और फिर क्या करते हैं, वो लोग बराबर पढ़ते हैं और जो एग्जाम्स की मुताबिक जो कुछ काम है वो आर्ट्स कॉमर्स में चले जाते हैं, वो इंजीनियरिंग मेडिकल के पीछे नहीं भागते, क्योंकि उनको मालूम है कि ह्यूमैनिटीज
और उनका जो टॉपिक्स है वो परीक्षा में ज्यादा उपयोग में आने वाला है. They will be more comfortable with the subjects because general awareness, जनरल स्टडीज, उनके पेपर का नाम ही है जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3, जनरल स्टडीज 4. तो ये जो पेपर होते हैं एमसीक्यू वाले, तो उनमें सब जनरल स्टडीज यानी एनवायरनमेंट के बारे में, पॉलिटी के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, साइंस के बारे में, बॉटनी के बारे में, जूलॉजी के बारे में, फॉरेस्ट्री के बारे में, एनीथिंग एवरीथिंग. तो ये सब ये लोग पढ़ते रहते हैं और साथ में अपना जो कुछ सिलेबस है वो हायर सेकेंडरी का, ग्रेजुएशन का, वो भी पास करते रहते हैं. मगर दे डू इट साइमल्टेनियसली, पैरेलल चलते हैं. तो सिविल सर्विस के लिए पहले से माइंड बना दिया और बाद में उस सब्जेक्ट का उसका स्टडी भी करते रहते हैं. तो इसलिए वो बीमारू स्टेट से ज्यादा आईएएस मिलते हैं, गुजरात से कम मिलते हैं. You'll be surprised to know in સચિવાલય or in collector we always see કે આપણા કલેક્ટરને મળવા જાઓ તો કે એ તો કઈ નામ તમે બોલતા ના આવડે, કોઈ સાઉથ ઇન્ડિયાનો છે, કોઈ યુપીનો છે, કોઈ બંગાળી છે, કોઈ મદ્રાસી છે. તો એનું કારણ આ છે. અને એટલે તમને આશ્ચર્ય થશે કે ચિમનભાઈ પટેલ ની સરકાર જ્યારે ગુજરાતમાં હતી ને ત્યારે અમને પહેલી વાર વિચાર કર્યો કે ગુજરાતના છોકરાઓને આઈએએસ તરફ વાળો, કારણ કે આ બીજા સ્ટેટના છે પણ ગુજરાતના છોકરાઓ આઈએએસ તરફ વળતા નથી. કેટલાક હતા જ, આપણે સેલસ સાહેબ ને લેરી સાહેબ ને બધા થયા જ ચીફ સેક્રેટરી, પણ દે વેર ફ્યુ, તમે આંગળીના વેડે ગણી શકો એટલા. પણ વધારે લોકો એપિયર થતા નથી, વધારે કલેક્ટર થતા નથી, વધારે ડીડીઓ ડીએસપી થતા નથી. તો તમે સ્પીપામાં અમે સરદાર પટેલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, ઈસરોની સામે છે ત્યાં ચિમનભાઈએ કહ્યું કે જોઈએ એટલી ગ્રાન્ટ લઈ જાઓ પણ આપણા ગુજરાતના છોકરાઓને તૈયાર કરીને આઈએએસ તરફ વાળો, એ લોકો એમાં બેસતા થાય એવું કંઈક કરો. અને એ કામ એ વખતે 1990ની આસપાસ આ બધું કામ શરૂ થયું અને ગુજરાતમાં એક નવો ટ્રેન્ડ શરૂ થયો, જે મેં કહ્યું તેમ અલ્પ વિકસિત રાજ્યોની અંદર ના છોકરાઓ પહેલેથી એ તરફ વળેલા હતા. એટલે આપની વાત સાચી છે કે આજે ક્યારથી તૈયારી કરવી જોઈએ તો બહુ પહેલેથી કરવી જોઈએ, પણ આપણે લોકો જાગૃત નથી, એની જાણકારીનો અભાવ છે અને પછી શોધવા જઈએ છીએ કે હવે હું ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયો, હવે મને નોકરી કેવી રીતે મળે, અને નોકરી મળે એટલું નહીં, સારી નોકરી કેવી રીતે મળે, આ મોટી નોકરી કેવી રીતે મળે. એમાંથી પછી એ લોકો આ બધું જાણતા થાય છે અને લેટર ઓન આ બધી પરીક્ષાઓમાં બેસતા થાય છે. એટલે ગુજરાત એ રીતે ઘણું પાછળ છે અને મોડી સમજ આવે છે. પછી હવે ક્રેક કરી શકે છે. તમે દર વર્ષે જોતા હશો સ્પીપામાંથી 17-18 છોકરા છોકરીઓ ગુજરાતમાંથી એપિયર થાય છે અને એ લોકો આગળ વધે છે. આ બધું થવા માંડ્યું છે અને બહુ જ લોકો બેસવા માંડ્યા છે. પણ અગાઉનો સિનારીઓ એવો હતો કે બીજા રાજ્યોમાં જાણકારી ને અવેરનેસ હતી તે આપણે ત્યાં નહોતી. સર, હવે તો અવેરનેસ પણ વધી છે, સાથે સાથે એ ડિફરન્સ જે તમે આઈ થિંક એક ક્વેશ્ચનમાં કીધો, યુનિવર્સિટી એક્ઝામ પ્રિપરેશન, કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ પ્રિપરેશન, જો બંને અલગ અલગ છે तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ने लगता अगर હું प्रश्न पूछूं कि अगर कोई चाहता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परफेक्ट प्रिपरेशन करूं तो कहीं ना कहीं वो या तो खुद प्रिपेयर करेगा घर पे बैठ के ऐसे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ कोचिंग क्लास ढूंढेगा कि कोई अच्छे से कोचिंग क्लास में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूं. तो अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सम कोचिंग क्लासेस, सो हाउ कैन वी कैन से कि इज इट नेसेसरी कि अगर हम कोचिंग क्लास को ही ज्वाइन करके ये पास कर सकते हैं? अगर ऐसा है तो वी कैन से कि एनी वन क्लासेस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसा कुछ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस पे थोड़ा आपका ब्रीफ शेयर हो सके. नमन, आपका जो क्वेश्चन है ना कि हमारे जो गुजरात के बच्चे हैं वो सदा वो ट्यूशन क्लासेस के पीछे ही पड़े हैं. तो हमारे यहाँ तो नर्सरी का भी ट्यूशन होता है. हमारे सोसाइटी में देखते हैं तो वर्किंग कपल गोज फॉर वर्क एंड उनके बच्चे हैं तो अगल बगल में कहीं पढ़ने जाते हैं. तो वी आर कंडीशनड बाय ट्यूशन एंड कोचिंग. हाँ, तो तुरंत आपका सवाल आ गया कि कोचिंग सेंटर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, आए हैं और ऐसे ही सोचते हैं. बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शुड स्टडी इन कोचिंग क्लासेस ओनली. यू कैन प्रिपेयर एट होम. वो जब आपको मालूम होगा कि यहाँ जो अपने गांधीनगर में वो कड़ी स्कूल्स हैं, वो सेक्टर 23 में जो कड़ी की जो संस्था है ना, सार्वजनिक विद्यालय कड़ी, अभी तो यूनिवर्सिटी हो गई, सार्वजनिक यूनिवर्सिटी. तो वहाँ वो 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं
उनको भी इंटरनेशनल अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए उन लोगों ने क्लासेस किए हैं ऑन वीकेंड्स। और हमारे जो कॉलगी साहब, विथ whom I worked when he was vigilance commissioner and I was vigilance secretary, वो चीफ सेक्रेटरी होके रिटायर हुए, वो पढ़ाने जाते हैं और उनको बताएंगे कि डेसमंड टूटू का देहांत हो गया, तो हुआ डेसमंड टूटू। हाँ, और अभी जो कुछ चल रहा है ये जो रशिया और अमेरिका बीच, हाँ, वो जो आइलैंड के बारे में, तो वो क्या है, हाँ, क्रिमियन वॉर क्या है, ये क्या है, बहामा क्या है, एवरीथिंग। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में ये उनको जागृत करते हैं। तो हम लोग जो घर पे तैयारी करना जो लोग चाहते हैं, वी हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स इन डिटेल, we have to be aware about the current affairs can be local, can be state, can be region oriented, national and international, और कॉस्मोस। अब तो इंटरनेशनल से आगे ब्रह्मांड, क्योंकि ये सैटेलाइट और ये सब दुनिया है सब, हाँ, मंगल और चंद्र और सब कुछ। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग इन ईच एरिया। वो बॉटनी का भी जानना चाहिए, जूलॉजी का भी जानना चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी का और आर्कियोलॉजी का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ये वडनगर जो चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात हुई, तो वडनगर चीफ सेक्रेटरी क्यों जाते हैं, तो वहां आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हो रहे हैं और वहां से बुद्धिस्ट वो जो रेमनेंट्स अवशेष मिल रहे हैं, को वहां का बुद्ध का कुछ कल्चर ज्यादा था कि ये था, तो पूरे वडनगर को खोद डाला है, हाँ, क्योंकि वो सब निकल रहा है। तो वी शुड नो। तो कैसे पढ़ना चाहिए, ये चीफ सेक्रेटरी सापुतारा नहीं गए, आबू नहीं गए और वडनगर क्यों गए, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि वहां कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए। हम जो न्यूज पढ़ते हैं, और व्हेन आई वाज इन ग्रेजुएशन, वो हमारे पीजी मावलंकर साहब तो हमारा एक लेक्चर देते थे, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में हमारे वो इंपॉर्टेंट आइटम्स क्या है, हमको जानने के लिए क्या है। So we should read those items only and leave others aside. बाद में लीडर आर्टिकल पढ़ना चाहिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं, हाँ, उनका पढ़ना चाहिए, और एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, क्योंकि एडिटोरियल गिव्स द पर्सपेक्टिव डायमेंशन फ्रॉम ऑल डायमेंशंस। एक सब्जेक्ट है तो उसमें अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, और वो सबको मिला के सबको लक्ष्य में लेके एडिटोरियल लिखा जाता है। So you should know only one dimension of the topic or the subject, and you should know the holistic. You should have the holistic approach. तो उसके लिए subject expert and then editorial. तो ये सब घर पे one should read newspapers, one should watch TV news, one should attend important news debates. हाँ, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, ये सबको ज्यादा पढ़ना चाहिए। वो जो सेंसेशनल और सीरियल्स और ये सब है, उसको छोड़ना चाहिए। ये आपघात की बात है, अकस्मात की बात है, वो सब लीव असाइड और फाइंड आउट विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये जो हिजाब की बात है, तो व्हाट इज हिजाब, ये कर्नाटक में कहाँ हुआ, कौन सी स्कूल में हुआ, और मुस्कान कौन है, वो पता चलना चाहिए। वो लड़की का नाम मुस्कान है, तो वो मुस्कान ने कैसे जवाब दिया, क्या किया, उसके पीछे क्यों पड़े थे। तो यू शुड नो द सब्जेक्ट थॉरली, उसके पीछे क्या है, हाई कोर्ट क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, ये सब ऐसा जो माइंड डेवलप हो जाएगा, तो हर एक टॉपिक को वो विद्यार्थी, वो जो एस्पिरेंट, वो जो कॉम्पिटिटर, वो अलग अलग तरीके से और पूरा इश्यू को समझने का उसका मेंटल मेकअप हो जाएगा। तो इस तरह वो घर पे तैयारी कर सकता है, बजाय कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें। तो कोचिंग क्लासेस करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, हाँ, और आपके घर पे सब लिटरेचर भी भेज देते हैं बाय कुरियर, पोस्टल, वो सब हो सकता है। उसका भी अगर आपको जरूरत तो करो, मगर इट इज नॉट मैंडेटरी दैट वन शुड प्रिपेयर ओनली थ्रू कोचिंग क्लासेस। ये कंपलसरी नहीं है, उसके बिना हम आईएएस नहीं हो सकते, ऐसा भ्रम रखने की जरूरत नहीं है। There are many candidates who have prepared at home, have competed and they have succeeded also. So ये सब कुछ पॉसिबल है। तो जो कोई अभी जो सुन रहे हैं, उनको सोचना ये कौन सा क्लासेस अच्छा है, ये सोचने के बजाय वो अपने घर पे या अपनी सोसाइटी में कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, कोई लाइब्रेरी है, उनका सबका उपयोग करके ये सब पढ़ने का, जानने की शुरुआत करनी चाहिए। आपकी बात सही है सर, लेकिन कई बार ना न्यूज़पेपर में सुना हुआ है कि સ્પીડમાં ઘણા બધા કેન્ડિડેટ્સ સફળતાની સીડી ચડી રહ્યા છે। એક સાઈમા
जी ने भी एक क्वेश्चन अभी हमें लाइव पूछा हुआ है कि हाउ कैन आई जॉइन स्पीपा, मतलब ये यस, स्पीपा का सक्सेस के बारे में कई बार न्यूज़पेपर में सुना हुआ है। सो हाउ और कैसे, इसके बारे में जरा अगर आप कुछ डिस्क्राइब करें तो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आज का जो इन प्रेजेंट टाइम्स वी हैव बीन पुश्ड टुवर्ड प्राइवेटाइजेशन। देखो हम लोग प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज का उपयोग करते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, ये सब प्राइवेट 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 हो गया है। हाँ, तो इसी समय में स्पीपा इज अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड एवरीबडी वांट्स टू जॉइन स्पीपा। देखो ऐसे गवर्नमेंट की जो कुछ इमेज है वो तो वी आर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विथ इट। हाँ, वो उसके बारे में लोग का अलग अलग सब, ये काम नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो सब देर आर any number of complaints against government offices and government officers। मगर स्पीपा में सबको ज्वाइन होना है क्योंकि उसको कोचिंग क्लास वो उसको कॉम्पीट करके सफल होना है। तो स्पीपा इज द ओनली कोचिंग क्लास, वो कोई गारंटी नहीं देता है मगर उसको कोच करता है, उसको गाइडेंस देता है, हाँ, उसको मोटिवेट करता है। वी हैव अ वेरी गुड लाइब्रेरी एट स्पीपा। द फर्स्ट थिंग वी डिड एट दैट टाइम इन 90s, वो चिमन भाई की बात मैंने कही ना, तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी हम लोगों ने बनाई कि जहां ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स इज आर अवेलेबल। तो एक किया, फिर वेरियस पीरियोडिकल्स, वेरियस डेलीज। देखो जिसको कंपटीशन में आगे बढ़ना है ना, उसको गुजराती पेपर अच्छे नहीं, ऐसा बात मैं नहीं करता हूं, मगर वे सब एडवर्टाइजमेंट और ये ऐसे ऐसे सेंसेशनल न्यूज में पड़े हुए ज्यादा है। वो टॉपिक में जो हमको हमारे लिए जो उपयोगी है वो आपको मिलेगा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में, हिंदी न्यूज़पेपर्स में, तो वो पढ़ना चाहिए। इसलिए वहां हिंदू आता है, वहां टेलीग्राफ आता है, वहां टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, वहां इंडियन एक्सप्रेस आता है, वहां ये जो क्या है हिंदू का वो मैगजीन आता है, फ्रंट लाइन आता है। हाँ, तो ये सब जो मैगजीन है, ईपीडब्ल्यू आता है, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, तो ये सब, और ये स्पीपा की लाइब्रेरी बहुत रीच है। और स्पीपा में अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली से भी फैकल्टी उनको कोचिंग देते हैं, यहाँ से भी कोचिंग का होता है। वो स्पीपा की एग्जाम जो आपने कहा कि कोई एक दर्शक अभी पूछ रहे हैं कि हाउ टू ज्वाइन स्पीपा, तो एवरी ईयर अराउंड अगस्त सितंबर देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द न्यूज़पेपर्स कि स्पीपा में ज्वाइन करने के लिए आप ये फॉर्म ऑनलाइन फिल करो, और उसकी जो एग्जाम है वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू की एग्जाम है 100 मार्क्स की, और उसमें आपका स्कोर कितना आता है उसमें से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। और अभी तो क्या है कि अहमदाबाद में एक सेंटर है, मगर गुजरात में और भी स्पीपा के सेंटर्स हैं, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, वहां भी है। और वहां ये लोग देयर वर ओनली 100 सीट्स at SPIPA in Ahmedabad. Now there are 500 seats and it is divided in various centers. So you have to appear in that exam after you have completed your graduation, or if you have given final exam and result is awaited, then also you can appear. But when you are admitted, at that time you should be a graduate. तो ये करके उन लोगों ने एक एग्जाम डिवाइस की है और उसमें कॉम्पीट करके आपका एडमिशन होता है। वो एडमिशन के बाद वो लोग जो कोचिंग देते हैं, गाइडेंस देते हैं, आप लाइब्रेरी का रेफरेंस की तरह उपयोग करते हैं, उसमें से ज्यादा लोग सफल होते हैं। तो स्पीपा के बारे में जो उन्होंने पूछा ना, तो वो ग्रेजुएट होने के बाद अगस्त सितंबर में न्यूज़पेपर में देखते रहना कि वो एग्जाम आती है और उसमें अपीयर होके आप एडमिट हो सकते हैं। सर मनोज जी का भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मुंबई में स्पीपा के कोई सेंटर्स है और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम कुछ शेयर कर सके उन्हें, तो ये एक क्वेश्चन मनोज पंचाल जी ने हमें पूछा। नहीं, मुंबई में क्या पूछ रहे हैं? मुंबई में क्या, मुंबई में सेंटर है स्पीपा के? नहीं, स्पीपा is an institute run by government of Gujarat, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उसका एक ही काम नहीं है, आईएएस सेंटर, आईएएस कोचिंग सेंटर इज वन ऑफ द वर्क्स। बात तो ज्यादा काम तो इन सर्विस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना है, हाँ, वो सब चलता है। और एक विंग है आईएएस कोचिंग सेंटर की, और ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है। तो ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कुछ किया है तो हो सकता है, यू शुड इंक्वायर अबाउट इट इन बॉम्बे दैट वेदर महाराष्ट्र सरकार
has started such coaching center at the government level or not. And otherwise, Bombay is a very metropolitan city, so there may be many options available, which may be available in Ahmedabad. सो वो भी उनको खोजना चाहिए। और आप जो स्पीपा जैसे इंस्टीट्यूट का खोज कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार ने किया है कि नहीं, वो भी उसको वहां तलाश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करने के लिए। और लाइव जो भी क्वेश्चन आएगी मैं शेयर करता रहूंगा, नो इश्यू। अब आता है एक ऐसा क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एक डर रिप्रेजेंट करता है। कई बार सुना है कि सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करना इट इज समहाउ इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। सो इज इट सो कि एग्जाम क्रैक ही नहीं हो सकता? नो डाउट कई सारी सक्सेस स्टोरी सुनी हुई है, लेकिन हर यंगस्टर्स के जबान से कई बार मैंने भी सुना हुआ है कि नहीं भाई, सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करना मतलब पसीना छूट जाता है उसकी प्रिपरेशन में। सो इज इट सो, इज इट ट्रू? सो क्या एक रीते कहिए तो आ बात खोटी નથી, आ बात साची છે। इट इज ट्रू ऑल्सो। ये लोग जो सोचते हैं वो सही भी है, एक मायने में सही है, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। बिकॉज क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि टेक्स्ट बुक नहीं है। हाँ, तो द एरियाज ऑफ इंटरेस्ट आर सो वाइड, कहां से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, तो उसका लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, इसलिए ये डिफिकल्ट है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू क्रैक। बहुत से लोगों ने, बहुत से गुजराती युवकों ने भी, युवतियों ने भी ये क्रैक करके दिखाए। और यू बी सरप्राइज कि क्या होता है, क्योंकि कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन गेट्स नैरोड डाउन व्हेन यू रीच हायर एंड हायर। आगे चलते हैं ना तो वो नैरो होती है। पहले क्या होता है कि लैक्स ऑफ पीपल अपीयर इन प्रीलिम एग्जाम। देयर आर 3 स्टेजेस: प्रीलिम एग्जाम्स, मेंस एंड ओरल। तो प्रीलिम में लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स अपीयर, उसमें से फ्यू थाउजेंड्स क्लियर द प्रीलिम एग्जाम। तो फ्यू थाउजेंड्स की जो परीक्षा है वो अपनी मेंस एग्जाम होती है, उसमें होते हैं। मेंस में से फ्यू हंड्रेड्स आर सिलेक्टेड फॉर ओरल इंटरव्यू, और 3 गुने वो किए जाते हैं। अगर उसमें 700 वैकेंसीज है तो 2000 को चांस मिलेगा ओरल में अपीयर होने का। तो इट गेट्स नैरोड डाउन फ्रॉम प्रीलिम टू मेंस टू ओरल। तो सब वहां छटनी होती है, हाँ, वो कट होता है। तो इसलिए इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो क्रैक करना ये सबको जो मुश्किल लगता है वो बात तो सही है, क्योंकि इसमें ये जरा वो यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने जैसा इतना वो इजी बात तो नहीं है। इसलिए, मगर मैंने अभी बताया कि इट कैन बी डिफिकल्ट, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। वी ऑलवेज कोट अवर न्यूटन, अरे ये अपना नेपोलियन का हम कोट करते हैं कि देयर वाज नो वर्ड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी इन हिज डिक्शनरी। तो उसका ऐसे कोट करने से कुछ नहीं होता है, मगर वी शुड गेट फुल्ली मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट दैट आई कैन क्रैक दिस डिफिकल्ट एग्जाम, आई कैन कॉम्पीट। ये बात सही भी है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते ही नहीं है कि मैं यूपीएससी कर पाऊंगा। मगर दोज हु हैव दैट मेंटल एटीट्यूड ऑफ जनरल अवेयरनेस, उनके पास है, उन्होंने पहले से कुछ किया है, उनका दिमाग में ये सब बात है, तो उनको बराबर तैयारी करके अपीयर होने की जरूरत है। और यू शुड, ये तो क्या होता है, हम लोगों ने तो बहुत साल से ये सब कर रहे हैं, तो देखा है कि फर्स्ट ट्रायल में क्लियर होने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सो यू शुड हैव टू गिव 5-6 years टू दिस प्रोजेक्ट। 5-6 साल आपको देने चाहिए। 32 years तक का अपर लिमिट है। तो एक बार नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पास होने वाले लोग हैं। हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीलिम में पास हो गए तो मेंस में अटक गए, मेंस में पास हो गए और किनारे पे आ गए, और ओरल में चांस नहीं लगा। तो ओरल में चांस नहीं लगा तो फिर से प्रीलिम में बैठना पड़ता है, और जिसने ओरल तक पहुंचा है तो दूसरी बार प्रीलिम में फेल हो जाता है। ऐसा भी होता है। एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट ऑल द 3 steps। वो फिर से ओरल में गया यानी प्रीलिम आपको नहीं देना, ऐसा नहीं है। You have to start from first step. First step is prelim, second is mains, then oral. तो कभी ऐसा भी होता है, अगर प्रीलिम में हो गए तो मेंस में अटक गए। तो ये सब स्टेजेस है, और हर एक जगह पे, हर एक लेवल पे आपको बहुत तैयारी करनी होती है, और उसके लिए एम्पल मटेरियल इज अवेलेबल,
ample chances are available, ample coaching facilities available. ये सबको अपना अपने यूज में लेके आपको कॉन्फिडेंट रह के, यू शुड हैव साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, हम लोग बोलते हैं. हाँ, तो कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होना चाहिए. हे હું તો નપાસ થયો, હું તો રહી ગયો. नो, यू कैन डू इट अगेन. हाँ, यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. ये आपकी तैयारी होनी चाहिए टिल आई क्रैक दैट एग्जाम. तो ये मेंटल एबिलिटी, मेंटल कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड. अगर क्या होता है, जब जैसे ज्यादा अचीवमेंट और ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज के पीछे भागते हैं ना, तो उसमें डिफिडेंस आने का भी चांस बहुत है. इसलिए यू शुड मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड, वो बैलेंस ऑफ माइंड यू शुड मेंटेन. ये बहुत जरूरी है. वो फिजिकल लेबर ये सब करो, मगर मेंटल एटीट्यूड, हाँ, वो स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए. वो पर्सपिरेशन करके आई विल एस्पायर एंड आई विल अचीव. ये जो गोल है, आई विल नॉट स्टॉप टिल आई रीच द गोल. ये मानसिकता बनी रहनी चाहिए अंत तक. ये जरूरी है. स्ट्रॉन्ग विल. देखिए क्वेश्चन फिर से आया है, लेकिन आई होप कि उसका आंसर हमने दिया हुआ है. क्वेश्चन इज विच बुक शुड यूटिलाइज टू क्रैक दिस एग्जाम्स. लेकिन मुझे भी पता है कि जैसे आपने बताया, नॉट अ सिंगल बुक इज डिजाइंड. लेकिन इस टॉपिक पे एक बार फिर से आपकी ओर से एक स्टेटमेंट दिया जाए कि देयर इज नो सच बुक. एक ही बुक पे हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, न्यूज़पेपर, टीवी. ये नमन जो बोल रहे हैं, वो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि विच बुक आई शुड रीड. तो दोज हु हैव जॉइंड लेटर ऑन, हाँ, उनको मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि उनके लिए कोई टेक्स्ट बुक होती नहीं है ये एग्जाम के लिए. वो जीपीएससी हो या यूपीएससी हो, और कोई भी सबऑर्डिनेट सर्विसेज की भी हो, गौण सेवा पसंदगी मंडळनी तलाटीनी होय के विद्या सहायकनी होय, એમાં હવે ટેક્સ્ટ બુક વાળું નહીં આવે. સ્કૂલ કોલેજમાં ભણ્યા એના કરતા તદ્દન જુદો એપ્રોચ છે. એટલે તમારી સામાન્ય સમજ, સામાન્ય અભ્યાસ, જાણકારી, કરંટ અફેર્સ જેને આપણે કહીએ છીએ, હા, કરંટ નોલેજ, હા, કોમ્પિટિટિવ નોલેજ, આ બધી બાબતો તમે રોજ છાપા, ટીવી, વાતચીત, ચોપડીઓ, બધા द्वारा, સામયિકો, આ બધાના વાંચન દ્વારા તમારે મેળવતા રહેવું પડે અને તમારું માઇન્ડ તૈયાર કરવું પડે. એક ટેક્સ્ટ બુક નથી. આ હું અગાઉ પણ કહી ચૂક્યો છું, પણ નમન કહે છે કે ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ કમિંગ ફ્રીક્વન્ટલી because somebody must have not listened properly or must have joined later on. तो उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि there are no prescribed textbooks for competitive exams. but ये गुजराती लिटरेचर है, तो उसमें लिखेंगे कि अखो, मीरा, ते ત્યાંથી માડીને સુરેશ જોશી ને ઉમાશંકર જોશી સુધી. હા, હવે તમે તમારે જે ચોપડી વાંચવી હોય તે વાંચો. સાહિત્ય પરિષદના ઇતિહાસો વાંચો, કે બજારમાં મળતી ગાઈડો વાંચો, કે તમે પછી બીજું કંઈ પણ વાંચો. તમારે જે વાંચવું હોય તે વાંચો, પણ આ બધા ટોપિક્સની અંદર કંઈ પણ પૂછી શકાય, કંઈ પણ આવી શકે. એટલે આ જે એરિયા જે છે ને, એક સમંદર જેવો થઈ જાય છે ને, એટલે લોકો ગભરાય છે. ગભરાટનું કારણ ખોટું પણ નથી, કારણ કે આપણે બધા આટલા બધાથી ટેવાયેલા નથી. આપણે બધા हम लोग थोड़ा ये पढ़ने के लिए ही वो लोग वी हैव बीन ट्रेन्ड with these textbooks only and guides only, and वो unseen paper तो बहु अघरू पड़ी जाए. तो आ બધું અહીંયા unseen છે, જે તમે જોયું નથી. unseen જે ભણ્યા નથી, unseen પેપર છે. यस सर. सर एक क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्विसेज, इन्हीं एग्जाम्स को ऑल इंडिया सर्विसेज भी कहा जाता है, क्यों, कैसे, मतलब इसके ऊपर अगर आप कुछ शेयर करें. बिकॉज ये जो है ना, जब व्हेन यू हैव क्लियर, मान लो कि किसी ने क्लियर कर दिया, हाँ, यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर ली, ही इज सक्सेसफुल, वो क्लियर कर दिया, तब ही कैन बी पोस्टेड इन अंडमान निकोबार, he can be posted in Kanyakumari, he can be posted in Mysore, he can be posted in Darbhanga, he can be posted in Guwahati, anywhere. ऑल इंडिया सर्विस है. उनको जो सिलेक्शन हुआ वो ऑल इंडिया में कोई भी स्टेट में, कोई भी इंडियन टेरिटरी में उसका पोस्टिंग हो सकता है. बिकॉज ही इज बीन, उसको ये जो एग्जाम तो है ही, पर उसके बाद उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है. आईपीएस है तो हैदराबाद में पुलिस अकादमी में दी जाती है, और आईएएस है
तो उसको मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव अकादमी, वहां जब हमारे अहमदाबाद के कलेक्टर थे वो वहां डायरेक्टर है। हाँ, तो वो वहां ट्रेनिंग देते हैं। तो उनको एक ट्रेनिंग भी ऑल इंडिया टाइप की दी जाती है और सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करती है। क्या करती है? इफ यू आर पोस्टेड इन तमिलनाडु, द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज अरेंज फॉर लर्निंग तमिल, क्योंकि गुजरात का वो बच्चा है और उसको आगे वो पोस्टिंग में तमिलनाडु में मिला। मेरा स्पीपा का एक हितेश मकवाणा करके था, हमारा फर्स्ट बैच का विद्यार्थी, वो आईएएस हुआ और ही वाज पोस्टेड इन तमिलनाडु। तो मैं 10-12 साल के बाद उसको मिलने गया, वहां से पसार हो रहा था, तो आई हैपन टू मीट हिम। तो ही वाज स्पीकिंग फ्लुएंटली इन तमिल विथ हिज पीए एंड विथ हिज ड्राइवर। तो मैंने बोला भाई हितेश તું આટલું બધું? તો કે સાહેબ આ તો ગુજરાત તમિલ સરકાર વ્યવસ્થા કરે જ છે ને, અમે લોકો ટ્રેનિંગ દરમિયાન જ શરૂઆતના પોસ્ટિંગમાં 6-12 મહિનામાં અમે એની લોકલ લેંગ્વેજ શીખી લઈએ છીએ। તો ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ છે એટલે તમારે જે આખો વહીવટ છે તે બધા રાજ્યોનો બેલેન્સ સમતોલ, હા, that should be એ બધા જ રાજ્યો પછી હજી તેમ છતાં કેટલાક આગળ છે કેટલાક પાછળ લઈ જાય છે ડેવલપમેન્ટમાં, પણ એવું બધું ન થાય અને સ્ટેચ્યુટરી એડમિનિસ્ટ્રેશન, કાયદાકીય પ્રક્રિયા, હા, આપણો વહીવટ એ ગુડ ગવર્નન્સની રીતે બધો ચાલે એ માટે ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસ એટલે યુ આર પોસ્ટેડ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા ઇન એની એરિયા ઓફ ધ કન્ટ્રી। એ રીતે આ ઓલ ઇન્ડિયા સર્વિસીસ છે। એમાં રેવન્યુ સર્વિસીસ છે, કસ્ટમ સર્વિસીસ છે, પોલીસ સર્વિસીસ છે, એમાં એકાઉન્ટ એન્ડ ઓડિટિંગ સર્વિસીસ છે અને એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સર્વિસ છે। આ બધા એરિયાસ છે। હું કહેવાનું તમને ખાસ કહું કે આપણે આઈએએસ ને આઈપીએસ બે જણને ઓળખીએ છીએ, પણ આઈએફએસ ફોરેન સર્વિસ, તમે એમ્બેસીમાં તમારું પોસ્ટિંગ થાય અને there are 23 સર્વિસીસ જે આ એક જ એક્ઝામ પાસ કરવાથી તમારું રેન્કિંગ કેટલું ઓછું આગળ પાછળ છે એના આધારે તમને એ ઓફર થાય છે। એટલે બહુ મોટો એરિયા છે। ઓકે ઓકે સર, એક એવો ક્વેશ્ચન કે જે મને 2-3 વ્યુઅર્સે પણ પૂછ્યો છે કે અત્યારના સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યારના બાળકોને आज एग्जाम्स, ये सिविल सर्विस एग्जाम्स, यूपीएससी एग्जाम्स, उनको इनिशियल फेज ऑफ देयर लर्निंग, શરૂઆતના જ તબક્કાઓમાં બાળકોને આ તરફ વાળવા હોય, लेट देम मोटिवेट, हाउ टू मोटिवेट। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि हाउ टू मोटिवेट चिल्ड्रंस कि कहीं ना कहीं उनको इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, और वो भी इनिशियल फेज ऑफ देयर लर्निंग। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन में कहा था कि बहुत पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है इसकी प्रिपरेशन की, लेकिन बच्चों को हाउ टू मोटिवेट, किस तरह से उन्हें मोटिवेट करेंगे? પહેલા તો એવું છે કે આપણે બાળકોને આ બધી ઘરમાં વાતો કરવી જોઈએ। हाँ, हमको उनसे अवगत करना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है, डीएसपी कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये मुख्यमंत्री क्या है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है। ये सब जो रोज बरोज के वो आते हैं न्यूज। हाँ, अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग है, तो ईवीएम क्या है, हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। हाँ, तो ये सब की जानकारी हम लोग करते ही नहीं। पहले तो घर में अपने बच्चों के साथ ये सब करंट अफेयर शुड बी डिस्कस्ड। हाँ, ऊपर ऊपर से थोड़ी चर्चा करो, फिर उसको बोलो कि ये न्यूज आइटम पढ़ो, ये आर्टिकल पढ़ो, ये एडिटोरियल पढ़ो, ये करो, ये मैगजीन पढ़ो, ये ईपीडब्ल्यू में देखो, ये फ्रंटलाइन में देखो, ये सफारी में देखो। ये सब कुछ पहले से उनको बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, वो अपना स्कूलिंग का कॉलेज का तो पढ़ ही रहा है, उसके साथों साथ simultaneously he should be made aware of education or literacy or knowledge outside the textbook, outside the educational syllabus and textbook। वो कुछ पढ़ रहा है उसके बाहर, हाँ, वो जाएगा, वो ये अपना जो हरणो उद्यान है गांधीनगर में, तो वहां जाए तो उसमें वो गुजरात एनवायरमेंटल एजुकेशन गिर फाउंडेशन है, तो एनवायरमेंट एजुकेशन क्या है, गांधीनगर में जीपीसीबी है, पॉल्यूशन कंट्रोल क्या है, हाँ, जीपीएससी की कचेरी है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक, ये जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल ब्यूरो क्या है, पुलिस भवन क्या है। वहां से निकलो तो उनको ये बताना चाहिए कि पुलिस भवन क्या है, तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये सब बताते रहना चाहिए। फिर उनको उसका लिटरेचर की और उसके पीरियोडिकल्स, डेलीज, उसकी तरफ उसको दौड़ना चाहिए। फिर उसको टीवी में आप कुछ देखो, बराबर है, मगर ये तो देखो ही, राज्यसभा और लोकसभा टीवी में ये तो देखो, ये न्यूज इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखो। जो तो आप इंग्लिश में देखोगे और हिंदी में तुरंत देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यू विल कम टू नो।
क्योंकि वो समाचार तो एक ही है, वो समाचार तो कर्नाटक का हिजाब के बारे में है, वो इंग्लिश में सुनो फिर हिंदी में सुनो तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो लैंग्वेज यू कैन डेवलप, हाँ, योर एंड कम्युनिकेटिव एबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी, यू कैन कॉम्प्रीहेंड जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ सुना जा रहा है, उसको बराबर आपके दिमाग में इनकलकेट करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना, ये सब जो एबिलिटीज है, हाँ, वो उनमें डालनी चाहिए। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पेरेंट्स की है। दूसरी टीचर्स की, मैंने कड़ी का उदाहरण दिया कि उन लोगों ने प्राइमरी के सेकेंडरी के बच्चों को वीकेंड में ये सब इंटरनेशनल अफेयर्स वो करना शुरू किया। तो जिसको जाना जाते हैं 60 लड़के हैं तो उसमें से 5 जाते हैं, 2 जाते हैं, कोई बात नहीं, मगर वो 2 को उसमें इंटरेस्ट है तो वहां से उसका ग्रूमिंग होगा। हाँ, उसको वो पता चलेगा कि ये मैं पहले स्टेप से 100 स्टेप तक पहुंचने वाला हूं आफ्टर बिकमिंग अ ग्रेजुएट। तो उसके पास पूरा विजन, क्लैरिटी ऑफ विजन होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ द दोज पोस्टिंग्स, हाउ इट कैन बी अचीव्ड, उसके बारे में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब बताना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक कविता सुना रहा हूं जो बहुत मोटिवेटिंग है। और हाँ, ये क्या है कि हम लोग बहुत से, क्योंकि हर एक लोग अपने बड़े हो वो भी कभी कभी डगमगा जाते हैं, तो ये तो बच्चे हैं और वो आईएएस की बात सुने तो आप बोलते हैं कि पर्सपायर हो जाते हैं, परसेवस रेप हो जाते हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। ये एक कविता है जो है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે પાણીમાં પડ્યા વગર તરતા આવડે નહીં, એટલે પાણીમાં તો પડવું પડે, લહેરો સે ડરકર, વમળ છે, વેણ છે, મોજા છે, એનાથી ડરી ડરીને નૌકામાં સામા કિનારે પહોંચાય नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं बारंबार कहूं छू कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी इज वेरी ऑपरेटिव वर्ड, कभी नहीं होती। उसको डटे रहना चाहिए। हाँ, यू डोंट लीव टिल यू अचीव इट। तो वो एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ। ये अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो तो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए कि आई विल नॉट लीव इन बिटवीन, मगर मैंने जो रास्ता तय किया है वहां पहुंच के ही अटकूंगा। फिर उन्होंने उदाहरण दिया है, देखो बहुत बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, कीड़ी नानो खांडनो कण लईने दौड़े छे, तमे नवरा बैठा हो त्यारे जुओ, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। પડ્યા જ કરે છે, પાછી જાય છે, ભારે પડે છે, પાછી ઊભી થાય છે। हाँ, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। क्या? मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। हाँ, ये एनाथी डरती नहीं, घबराती नहीं, नासीपास थती नहीं। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बीजू उदाहरण आप्યું છે, પહેલું ઉદાહરણ કીડીનું આપ્યું કવિએ, હા, કે જુઓ તમે કે પહોંચ્યા એ કણ લઈને પહોંચશે જેના દર સુધી ને ભલે પડી જાય, ફરી 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 ફરી। હવે બીજું ઉદાહરણ, ડૂબકિયા સિંધુ में गोताखोर लगाता है। सिंधु એટલે સમુદ્ર, ડૂબકિયા આપણે જાણીએ છીએ મરજીવો જે દરિયાના નીચે જઈને મોતી લઈ આવે છે એની વાત છે। ડૂબકિયા સિંધુ में गोताखोर, गोताखोर એટલે મરજીવો, लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। જઈને આવે છે તો શું છે, મળ્યું ના મળ્યું, ખાલી હાથ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मोती मेळववा એ સહેલા નથી। મેળવાનું શું છે? મોતી મેળવવાનું છે, પથરો નથી મેળવવાનો, માછલું નથી મેળવવાનું, મોતી મેળવવાનું છે। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह उसी हैरानी में। એટલે તો જુઓ, નબળો પડે છે પણ દુગુના ઉત્સાહ, એનો ઉત્સાહ બેવડાય છે। बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। ક્યારેક તો લઈને જ આવે છે, કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહીં। અને છેલ્લી પંક્તિની અંદર એનો પર્સપેક્ટિવ આપ્યો છે, એનો સ્પિરિટ। હા, આ મહત્વાકાંક્ષાનો સ્પિરિટ એ શું છે એટલે ફિલોસોફી આપી છે। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। निष्फળ તો થવાય, हाँ, इट्स अ चैलेंज, एक्सेप्ट इट। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। एनालाइज करो, वेयर डिड आई फेल, कहाँ कमी रह गई, क्या खोटो पड़्यो, क्या ओछू लख्यू, क्या बराबर ना लख्यू। हाँ, क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। आ संघर्ष છે ભાઈ,
જીવનનો પણ સંઘર્ષ છે. આ મોટા માટે એટલી જ ઉપયોગી છે, એટલી જ આ સ્પર્ધક માટે પણ ઉપયોગી છે. કુછ કિએ બિના હી જય જયકાર નહીં હોતી. કલેક્ટર બનવું છે, હા. ઘણા લોકો કહે છે, મને પણ, હું નર્મદા હાઈસ્કૂલ શુક્લદીપમાં ભણતો હતો, રશ્મિબેન પારેખ કરીને ભરૂચના કલેક્ટર અમારે ત્યાં આવ્યા હતા. ત્યારથી મને તો કે આ કલેક્ટર કોણ છે કે આખું બધા શિક્ષકોને આચાર્યની આજુબાજુ દોડવા મળે. તો આવી જગ્યાએ મારે પહોંચવું છે. જો એટલે તમને પ્રોત્સાહન તો આવી રીતે મળે છે, ક્યાંક કોકને જોયા છે, ક્યાંક કંઈક અનુભવ થયો છે, પણ પછી તમારે જય જયકાર મેળવવા માટે પરસેવો પાડવો પડે. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. એટલે આ માનસિકતા દરેક સ્પર્ધકે પોતે બનાવવી જોઈએ. અને જેમને ખરેખર આ સિદ્ધ કરવું છે, those who want to achieve the important postings, higher posting, highest positions, तो उन लोगों के लिए ये मेंटल कॉन्फिडेंस इज अ मस्ट, और उसमें कुछ डगमगाहट होनी नहीं चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज मोटिवेशन, एंड मोटिवेशन कभी बाहर से आता है, कभी भीतर से भी आना चाहिए. यू शुड गेट ऑटो मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड कि मैं ये करके ही रहूंगा. હા, આજે મેં આ ફ્યુચરિસ્ટાનું આ સેશન સાંભળ્યું છે અને હવે મારામાં એક અભિપ્સા જાગી છે કે મારે પણ ડીએસપી ને આઈએસ થવું છે, મારે પણ કલેક્ટર થવું છે. તો હવે હું આ બધું મચી પડીશ ને બધું શરૂ કરી દઈશ, અને જરૂર પડે તો કોકનું માર્ગદર્શન દઈશ. ચોક્કસ, બરાબર છે. એક નહીં અનેકનું માર્ગદર્શન મેળવો, એક નહીં વધારે ને વધારે વસ્તુઓ વાંચો, હા, અને બધું શરૂ કરી દો, અને પલાંઠી વાળીને બેસી જાઓ, અને જ્યાં સુધી તમને પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી એની પાછળ ડટા રહો. આ જરૂરી છે ભાઈ. એટલે આજે ફ્યુચરિસ્ટાના માધ્યમથી જે કોઈ સ્પર્ધકો આ બધું જોઈ રહ્યા છે, they should get self motivated, become self confident, and try for the better positions, higher and higher positions. કમ્પ્લીટલી એગ્રી સર. જે તમે કવિતા કીધી ને એના વિશે હું એટલું કહું છું કે વર્ડ્સ gives energy, positivity, confidence, dedication. આ બધું જ વર્ડ્સ પ્રોવાઈડ કરે છે. એ સ્પેસિફિકલી તમે કીધેલી કવિતામાં આ બધી જ ઝલક જોવા મળી. અને આખા સેશનને જો હું કન્ક્લુડ કરવા જાઉં એ પહેલા એક સ્ટેટમેન્ટ હજી આપું કે 2 ટાસ્ક કરવા જેવા છે આજના સ્ટુડન્ટ્સે. સપનું જોવું અને એના માટે મચી પડવું, બંને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે આપણા રાષ્ટ્રપતિ જે અબ્દુલ કલામે કહ્યું હતું કે મોટા સ્વપ્ન જુઓ અને એ સફળ કરવામાં લાગી પડો. કમ્પ્લીટલી એગ્રી. સો થેન્ક યુ સો મચ ડંકેશ સર. આજના આ આપણા સેશનમાં બહુ જ कि જે કદાચ ક્યાંક ઘણા બધાને નથી ખબર. આટલી બધી क्वेरीज आई, इतनी सारी क्वेश्चंस मेरे सामने आए हैं. आई होप कि मैंने मेजरली एड्रेस किए हुए हैं. लेकिन मेजरली यही था कि बुक्स कौन सी, प्रिपरेशन कैसे, कितने सालों तक की प्रिपरेशन, ये मेजर यही क्वेश्चंस आए थे जिसके आंसर्स आपने बहुत ही परफेक्टली दिए हुए. आई थिंक हमने रिपीट भी किए हैं. सो ऑल द व्यूअर्स आर एग्री फॉर ऑल दिस टर्म्स: डेडिकेशन, કોન્ફિડન્સ, બિલીફ સિસ્ટમ, જે કહેવાય ને મચી પડવું. સપનું જોઈએ અને એના માટે મચી પડીએ. સો એના માટેનું આ સેશન પરફેક્ટલી આજનું ઓર્ગેનાઇઝ થયું. થેન્ક યુ સો મચ ડંકેશ સર કે તમે વેલ્યુબલ टाइम फाड़ो. અને फ्यूचरिस्टा कैरियर्स सेगमेंट में, इस सेगमेंट के अंदर हम ऐसे ही सीरीज ऑफ सेशंस प्लान करने ही वाले हैं. सो सैटरडे 4 बजे व्यूअर्स के साथ ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम मिलते ही रहेंगे. सो अगेन थैंक यू ऑल द व्यूअर्स. अगेन जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, सो थैंक यू सो मच ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने ये सेशन एंजॉय भी किया, बहुत सारे फैक्ट्स जाने, और बहुत सारे लोग आई होप अभी मुझे मैसेज यहाँ पे आ रहे हैं. दिस शोज दैट हाउ मच दे आर मोटिवेटेड नाउ. सो प्लीज एग्जीक्यूट योर एफर्ट्स, और जस्ट वी आर विशिंग कि सक्सेस मिले, क्रैक हो ये एग्जाम्स. मची पड़ू इज द सॉल्यूशन. हाँ, मची पड़ू इज द सॉल्यूशन. एंड प्लीज डोंट फॉलो अ सिंगल बुक, द मेजर कंसर्न ऑफ टुडेज सेशन. अगेन डंकेश सर, थैंक यू सो मच. ઓકે, મળતા રહીશું જરૂર. ચોક્કસ આપણે આવા જ ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આ જ રીતે નવા સેશન્સમાં મળતા રહીશું. થેન્ક યુ સો મચ અગેન. જય હિન્દ. થેન્ક યુ.